सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में संविधान बचाने का है। लहर फिलहाल जो है मोदी की है। And I think the hope is lost and people believe that now they want change. हाँ नहीं, केजरीवाल भी अच्छे इंसान है, मोदी जी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। 100% इस बार चेंज होगा। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We are in Moti Nagar in the New Delhi parliamentary constituency and today is the second day of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's campaign. As my colleague is showing you, you can see on your screens how the cavalcade of Arvind Kejriwal along with Bhagwan Mann is slowly rolling down the street in this constituency. Now from the Aam Aadmi Party, we have the candidate Somnath Bharti, who is an MLA from Malviya Nagar, and from the BJP we have Mansuri Swaraj, who is the daughter of veteran BJP leader Sushma Swaraj. And this contest is extremely interesting because remember, Delhi Chief Minister himself is an MLA from the New Delhi Assembly constituency, and when he made his debut into politics, he had contested from the New Delhi Assembly constituency and defeated the three-time incumbent Chief Minister Sheila Dikshit. Now you can see on your screens Arvind Kejriwal and Bhagwan Mann slowly moving forward, waving to the people, trying to convey that this time people should give a chance to the Aam Aadmi Party. Now just a short while ago, Arvind Kejriwal actually spoke to the people and he made 2 points. One, that if they've ever seen the candidate of the BJP, the MP of the BJP, Meenakshi Lekhi in these parts, and what had Meenakshi Lekhi done for this constituency. The other thing, of course, he said is that the claim that the opposition has been making, that if BJP will come to power, it is going to put an end to reservations and it is going to put an end to democracy. That has been the refrain of the opposition India bloc, and Chief Minister Arvind Kejriwal today carried the same argument forward. So Delhi Chief Minister, Punjab Chief Minister campaigning together. Now you can see the candidate of the Aam Aadmi Party, MLA Somnath Bharti, following behind the two Chief Ministers and doing his best in order to win over the support of the people. अच्छा, आप मोती नगर के कंस्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं? अच्छा, तो इस बार जब चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है कि किसका पल्ला ज्यादा भारी है? देखिए, कल केजरीवाल जी की स्पीच सुनी थी, हाँ। उस हिसाब से तो थोड़ा टर्न आया। बाकी तो अब समय बताया। मेरे को तो लगता है कि उसकी आएगी, मोदी जी की लगता है मुझे तो। अच्छा, और आपका प्रेफरेंस किसकी तरफ ज्यादा है? वैसे तो केजरीवाल की तरफ है, क्योंकि उसने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। बस बात यही है कि सुविधाएं उन्होंने दी हैं काफी दिल्ली में। हाँ। बाकी ये है कि लहर फिलहाल जो है मोदी की है। अच्छा, लहर मोदी की है। हाँ। बाकी इन्होंने सुविधाएं दे रखी हैं, केजरीवाल जी ने भी दी हैं। वो जो केजरीवाल जी को जो जेल हो गया और फिर जो बेल से वो अचानक निकल कर आए 20 दिन के लिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो राजनीति है या जो भी है। हाँ। और जो बेल से निकल कर आए और फिर कैंपेन शुरू कर दिया, इसका पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है कि भाई आप कोई भी स्पीच दे सकते हैं, कोई भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बार का किसका पल्ला ज्यादा भारी है? मुझे तो ये लगता है कि कोई भी है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सड़कें और पानी हमको चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आप इस बार वोट देंगे? अब पता नहीं है उस टाइम का मूड क्या होगा, क्या नहीं, पता नहीं। अच्छा, क्योंकि सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं। देखो, पहले हम सोचते थे शायद मोदी सरकार नहीं बना रही है,
और अब की केजरीवाल सरकार ने भी नहीं बनाई, तो फिर अब हम किस पे भरोसा करें। अच्छा। हाँ, वही है ना, जो आता है तो वो कहता तो सब है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उस वक्त तक कोई कुछ नहीं। अभी तक देखो सड़कें नहीं बनी है मोती नगर की, आप जहाँ से आए आपने देखी है सड़कें, बहुत खराब है सड़कें। तो इस बार किसका पल्ला ज्यादा भारी है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। जी। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि सभी लोग देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। कोई भी सुखी, आम आदमी बड़ा परेशान है। सरकार 10 साल तक चली है, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसने वो आम आदमी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है, आपकी पार्टी कि जो सबका ख्याल रखती है। बीजेपी हमेशा जीतती आ रही है दिल्ली से, 7 कंस्टिट्यूएंसी 2014 में भी, 2019 में भी जीता। इस बार वही होगा या कोई फर्क पड़ेगा? 100% इस बार चेंज होगा। आम आदमी पार्टी बढ़त बनाएगी। इस बार जब चुनाव होगा तो चुनाव के लिए कोई उत्साह है आपके लिए? चुनाव आ रहा है, बड़ा चुनाव 5 साल में एक बार आता है। हाँ जी, चुनाव को तो सब होता ही है कि आ रहा तो कुछ बड़ा ही अच्छा ही होगा। आप किसके साथ हैं? हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा, हमेशा से भाजपा के साथ रहे हैं? हमेशा तो बीजेपी को वोट देते हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलायंस से लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? काम तो पहले कांग्रेस ने भी नहीं करा, अब आम पार्टी से भी अभी थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू करा है हमारे यहाँ पर आसपास। अब थोड़ा प्रोग्रेस दिखा है, तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे क्या तो आम आदमी पार्टी को वोट दे सके हम लोग आगे जाके। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा? अब देखिए, दोनों तरफ की हार जीत लगी हुई है। हाँ। देखो किसका क्या होता है। तो पिछली बार, उससे पहले बार बीजेपी जीती थी, तो इस बार क्या लग रहा है, कोई बदलाव होगा या बीजेपी फिर से जीतेगी? इस बार बीजेपी का ही लग रहा है मुझको तो। बीजेपी का लग रहा है क्योंकि उसी का जोश ज्यादा है। क्योंकि वैसे तो ठीक हो, केजरीवाल भी ठीक कर रहे थे, परंतु अब ये चेंज हो गया ना कि हाँ वो जेल चलेगा, मैं थोड़ा सा काम वो हो गया ना, वो चलेगा, ये हो गया, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के मन में आ गए ना, उस चक्कर में है। आज केजरीवाल जी ने 10 गारंटी अनाउंस करी है, और जैसे दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं 200 यूनिट, स्कूल वो कहते हैं कि स्कूल उन्होंने अच्छा किया, बस राइड फ्री है औरतों के लिए। तो वैसे 10 गारंटी अनाउंस करा है उन्होंने, उससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, देखो अब पड़ेगा तो सही, जैसे लोगों को बताएंगे लोगों को तो फर्क पड़ेगा, पर उसके बाद देखो भी हाँ वो सच कह रहे हैं या गलत है या झूठ है। देखो दिलासा तो हर बंदा देता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे तो ये कर देंगे। अब ये वोट है ना, हर बंदा कहेगा ये सड़क ठीक कर देंगे, ये फलानी चीज, उसके बाद जब वोट डल गए फोन करते रहे, कोई फोन ही नहीं उठाएगा। अच्छा, मोदी जी की गारंटी के बारे में क्या कहना है आपको? मोदी जी की गारंटी के बारे में भी यही है कि महंगाई बहुत है, उन्होंने किया तो सबके लिए बहुत है, परंतु महंगाई के कारण जो है पब्लिक बड़ी परेशान है। अच्छा, वोट कहाँ पे देते हैं आप? मोती नगर। मोती नगर। हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं गरीबी हटे, अपनी लाइन में आए, सीएम में गरीबी हट जाए, बस ये चाहते हैं। अच्छा, आप ये क्यों चाहते हैं कि केजरीवाल जीते? गरीबी चाहते हैं क्योंकि बेनिफिट है, क्योंकि केजरीवाल ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पानी की सब है, सबकी ठीक करी है, और हमारे लिए पढ़ाई के लिए भी स्कूल हो रहे हैं, बच्चों की गरीबी के लिए सब कुछ किया उसने, इसलिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये पीएम की इलेक्शन है, सीएम की इलेक्शन नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ेगा आपकी वोटिंग के ऊपर? कुछ भी नहीं पड़ेगा, उससे नहीं कुछ भी नहीं पड़ेगा। मोदी ने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ, मोदी ने कुछ नहीं किया, पैसे खाए हैं बस, और कुछ नहीं करा। अच्छा, इस बार जो आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता जेल में गए, उससे फर्क पड़ा कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता भी भ्रष्ट हो? आपके मन में वो सवाल आया? नहीं मैम, इन पर तो झूठा इल्जाम लगाया गया, ये तो इन्हें फंसाया गया, क्योंकि जब कहते ना कि चोर मुसेरे भाई होते तो किसी न किसी को फंसा ही देते हो। अच्छे कहते कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, एक गीत के अंदर बोल है, तो यही बात है, बस अच्छे इंसान को हर कोई बदनाम करता है। तो आप बोल रहे थे कि आप कांग्रेसी हैं, तो बट इस बार किसको वोट देंगे फिर? हम केजरीवाल जी को दे देंगे वोट। कोई बात नहीं, हम कांग्रेसी तो क्या, काम तो ये भी करेंगे, काम वो भी करेंगे। और जो पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है मजबूर होके, और दूसरा फिर महंगाई इतनी का बुरा हाल है, 50 रुपए 60 रुपए से ऊपर सब्जी है। जो सब्जी गाय भैंस कभी सूंघती नहीं थी, वो सब्जियां सोने के भाव बिक रही है। आप बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इससे रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैम। हमें खुशी है कि वो बाहर आए,
अच्छा, उनके जो विपक्ष के जो लोग हैं वो तो बोलते हैं कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इसी की वजह से वो जेल में गए थे और बेल में ही आए हैं, फिर भी 2 तारीख को फिर से जेल चले जाएंगे। देखिए मैम, वो तो राजनीति है। जब भी अच्छा कुछ होता है, जब भी कोई अच्छा इंसान खड़ा होता है तो वो हमेशा ही पीछे जाया जाता है। आगे जो मतलब गलत करने वाले वो तो हमेशा आगे ही रहते हैं, पर हम अच्छाई हमारी पीछे चली जाती है। इसी तरीके से उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे लिए अच्छे हैं वो, और हम लोगों के बच्चों के स्कूल में, बस में, बिजली बिल, पानी का बिल, सब चीज फ्री किया है उन्होंने। तो हमें खुशी है उनसे। उनके जैसा नेता होना चाहिए हमारे देश में। आप बता दीजिए कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी बहुत फर्क पड़ेगा हमारे देश को, बहुत फर्क पड़ेगा। उन्हें आना चाहिए, वो जीत के आगे निकले। वो हम लोग यही चाहते हैं। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, आम मुस्लिम का भी, हिंदुओं का भी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपको? हम तो चाहते हैं कि हमारे केजरीवाल जी आए हमारे चुनाव में। आप कुछ करेंगे? हम लोग भी चाहते हैं कि केजरीवाल ही आए चुनाव में। अच्छा, आपको फर्क नहीं है, कोई सब फर्क नहीं पड़ता कि जीते ना जीते? जेल से निकल कर आए हैं और नेता भी जेल में हैं। हम लोग चाहते हैं हमें फर्क पड़ेगा। हम कहेंगे केजरीवाल आए, हमारे परिवार है, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बाहर आए, हमसे मिले, क्योंकि हमारे बीच में रहकर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हमें फर्क पड़ता है कि हमारा बाप, हमारा भाई अंदर है, इसके लिए हम उनका साथ देंगे। हम भी साथ सपोर्ट में हूँ। तो ये सारे लोग जो आपके साथ आए वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं? जी बहुत से लोग और भी हैं जो उनकी खुशी के लिए सब आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ तक अपने बच्चों तक को लाएंगे। और हमें इतनी खुशी है कि हमारी ईद दिवालियों से भी बढ़ के है ये खुशी कि वो आए हैं, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा ना जाए उस चक्कर में। So very strong and firm voices over here, clearly saying that they are going to vote for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. We have with us Aam Aadmi Party's candidate Somnath Bharti from the New Delhi constituency. सोमनाथ जी, ये बताइए कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का। इस प्रकार से खतरा आ गया है क्योंकि भाजपा का जो एक रवैया हो गया है कि भाई सबसे सर्वोपरि वही है। माननीय मोदी जी ने जो मनसा बना लिया है कि 1 नेशन 1 लीडर, मतलब बाकी सब पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज दो, उनके अपनी पार्टी के नेताओं को खत्म कर दो, और इस देश में हुकूमत से चलेगी माननीय मोदी जी की। डेमोक्रेसी को तार तार कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस करके पूरे देश में जनता एकाग्र हो गई है, जनता एक साथ आ गई है। जनता संविधान को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, अपने वोट की ताकत को बचाना चाहती है। ये बताइए, पिछली बार आम आदमी पार्टी अगर 2019 की बात करें तो नंबर 3 थी और उनको वोट भी कुछ ज्यादा नहीं मिले थे। देखिए, 19 का चुनाव अलग था। 19 में आप अगर देखें, पुलवामा का खेल खेला गया था। आपको याद ही होगा, गवर्नर मलिक साहब, मैं नहीं बोल रहा, भाजपा गवर्नर मलिक साहब ने एक्सपोज कर दिया भाजपा को कि किस प्रकार से भाजपा ने सैनिकों की जान पे खेल करके सत्ता के लालच में इस प्रकार से आज वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद जनता जान चुकी है, भाजपा का छद्म हिंदूवाद जनता जान चुकी है, जनता थ्रेडबेयर जान चुकी है कि भाजपा ने हर प्रकार से हर व्यक्ति को धोखा दिया। 24 में वो सबको सेटल करने का ये चुनाव है कि हम मोदी को इस बार बताएंगे कि धोखा देकर के जो वोट आपने लिया उसका जवाब इस बार देना पड़ेगा। और इस बात को सुनिश्चित किया कि डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत बड़ी चीज है, ये तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। इस कारण से आज पूरा देश एक हो चुका है कि ऐसी ताकतों को वापस भेजना है, उनसे सत्ता ले करके ऐसे व्यक्तियों को सौंपना है तो जनता को मालिक समझे, जनता को डेमोक्रेसी की मलकियत समझे। Question on
everybody's minds is that in 2019 and 2014, BJP won with an overwhelming mandate from Delhi, all the 7 seats. So why do you think that this time it is going to be any different? I think after 10 years of Mr. Modi's governance, he has lost all his sheen. People had a lot of hopes in 2014 that probably he'll do something for the country. He had made big promises to the people. Even in 2019, people thought, let's give him another chance. But now people have lost all the hope. And I think the hope is lost and people believe that now they won't change. 2014, people had a lot of hope from Mr. Narendra Modi. The kind of promises he had made with respect to unemployment, inflation, petrol, diesel rates. Aam Aadmi Party supporters essentially gathered to support the Chief Minister Arvind Kejriwal and campaign for their candidate Somnath Bharti here. But the point that I was trying to make is that in 2014 and 2019, the BJP actually won all the 7 Lok Sabha constituencies, including the New Delhi constituency, by a margin of over 50% of the vote share. And in 2019, it was the BJP's candidate Meenakshi Lekhi actually who had won from here. Congress's Ajay Magan was number 2, and Aam Aadmi Party's candidate was actually at number 3 position. He was Brijesh Goel. But this time there are 2 important changes that have happened. Number 1 is that Aam Aadmi Party and the Congress Party are contesting this election in an alliance. And number 2 is the arrest and judicial custody of Chief Minister Arvind Kejriwal and his unexpected release on bail in time to campaign for the Delhi elections. Now, while there is a consensus that this is going to have an impact this time on the results of the elections in Delhi, it remains to be seen whether this is going to be a decisive impact. In the meantime, you can hear the people of the Aam Aadmi Party supporting their candidates and their Chief Minister and their party. This election definitely is turning out to be more closer than it was expected even 10 days ago. With camera person Chintan in New Delhi, Rupashri Nanda. तो देखो भगवान ने सुन ली. थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी. ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है. आपके हाथ में ताकत है. पच्चीस मई